Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will practice some MCQs of chapter 15 Improvement in Food Resources of class 9 Science. So let's start with the questions. So the first question is, which one is an oil yielding plant among the following? A. Lentil, B. Sunflower, C. Cauliflower or D. Hibiscus? And the correct answer is sunflower. Second question, which one is not a source of carbohydrate? A. Rice, B. Millets, C. Sorghum or D. Gram? And the correct answer is gram is not the source of carbohydrate. Third, which one is wrong statement from the following? A. White revolution is meant for increase in the milk production. ये statement true है. Blue revolution is meant for increase in the fish production. ये statement भी true है. Third, increasing food production without compromising with the environmental quality is called sustainable agriculture. ये statement भी true है. So the correct answer is this D, none of the above. Fourth question, to solve the food problem of the country, which among the following is necessary? A. Increased production and storage of food grains. ये ट्रू है कि जो फूड ग्रेन्स है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होएगी तो उसकी स्टोरेज भी जब इंक्रीज़ होएगी तो इससे फूड जो कंट्री की फूड प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होएगी. सेकंड, इजी एक्सेस ऑफ फूड ग्रेन टू द पीपल. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि जो पीपल को मतलब एक्सेस भी तो होना चाहिए उन फूड ग्रेन्स का. सी, पीपल शुड हैव मनी टू परचेज द ग्रेन. ये भी ट्रू है. जो लोग हैं उनके पास पैसा भी होना चाहिए ताकि वो ग्रेन्स को खरीद सकें. So the correct answer is D, all of the above statements. Fifth question, which among the following are exotic breeds? Exotic breeds या फिर हम कह सकते हैं foreign breeds. A. Brown, B. Jersey, C. Brown Swiss or D. Jersey Swiss. So the correct answer is B and C both. Jersey and Brown Swiss. Brown और Jersey Swiss कोई breed नहीं होती है. जर्सी और ब्राउन स्विस ब्रीड्स होती हैं. सिक्स क्वेश्चन, वीड्स अफेक्ट द क्रॉप प्लांट्स बाय ए. किलिंग द प्लांट्स इन फील्ड बिफोर दे ग्रो, बी. डोमिनेटिंग द प्लांट्स टू ग्रो, सी. कंपीटिंग फॉर वेरियस रिसोर्सेज ऑफ प्लांट्स कॉजिंग लो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और डी. ऑल ऑफ द अबव. So the correct answer is competing for various resources of plants causing low availability. वीड्स क्या करती है, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनके साथ जो रिसोर्सेज होते हैं फूड, स्पेस, लाइट के लिए compete करती है और जो न्यूट्रिएंट्स उनको मिलने होते हैं वो खुद यूटिलाइज करने लग जाती है. सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस. हमें 4 सेंटेंसेस गिवन है और फिर हमें देखने कि इनमें से कौन कौन से सेंटेंसेस करेक्ट हैं. So first is hybridization means crossing between genetically dissimilar plants. ये statement true है. Second, cross between two varieties is called interspecific hybridization. ये statement wrong है. Because जो अगर two varieties के बीच में cross होएगा तो वो intervarietal hybridization होगा, interspecific नहीं. थर्ड देखते हैं, इंट्रोड्यूसिंग जीन्स ऑफ डिजायर्ड करेक्टर इनटू अ प्लांट गिव्स आउट GMOs, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. ये स्टेटमेंट ट्रू है, जिनको हम एक्चुअली ट्रांसजीन भी बोलते हैं, मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलते हैं हम. फोर्थ, क्रॉस बिटवीन प्लांट्स ऑफ टू स्पीशीज इज कॉल्ड एज इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन. ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है बिकॉज टू स्पीशीज़ के बीच में जो क्रॉस होता है उसे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन. इसमें सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन ये रहा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. एट्थ क्वेश्चन, विच वन इज़ करेक्ट अबाउट मैन्योर. इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स देखनी है मैन्योर से रिलेटेड. सो द फर्स्ट, मैन्योर कंटेन लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. Second, it increases the water holding capacity of sandy soil. Third, it helps in draining out the excess of water from the clay soil. And fourth, its excessive use pollutes the environment because it is made of animal excretory waste. So the correct answer is first and second option. तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ दे रखा है, P.
जो manure right contains large quantity of organic matter and small quantity of nutrients. Second, it increases the water holding capacity of sandy soil. Rest of the two statements false. Ninth, cattle husbandry is done for the following purposes: milk production, agricultural work, meat production, egg production. तो जो कैटल हस्बेंड्री होती है वो एक तो मिल्क की प्रोडक्शन के लिए की जाती है, एग्रीकल्चरल वर्क कैसे, जो ड्रॉड पर्पस के लिए जो एनिमल्स रेयर किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जो बुल हो गया वो ट्रांसपोर्टेशन वर्क के लिए या फिर टिलिंग के वर्क के लिए, इरिगेशन के लिए जो यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चरल वर्क के लिए, एंड मीट प्रोडक्शन. सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Question number 10. Which of the following are Indian cattle? So the correct answer is this Bos indicus and Bos bubalis. Bos indicus is the scientific name for the cow and Bos bubalis is the scientific name for the buffalo. 11th question is poultry farming is undertaken for. Poultry farming किस लिए की जाती है? A. Egg and feather production. B. Feather and chicken meat. Third, egg and chicken meat. And fourth, milk and egg production. So the poultry farming is done for egg and chicken meat. Question number 12. Which of the following is not a weed? इनमें से weeds कौन कौन सी नहीं है? Cowpea, Parthenium, Motha, Xanthium. And the correct answer is cowpea. Cowpea एक crop plant है. It's not a weed. Question number 13. Which of the following is not a cropping pattern useful in the increasing of the food production? A. Mixed cropping. B. Hybridization. C. Intercropping. D. Crop rotation. So the correct answer is hybridization. Hybridization न्यू वेराइटीज़ फॉर्म करने के लिए एक प्रोसेस है, ना कि फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेज इज अ सरफेस फीडर? इनमें से कौन सी फिश सरफेस एरिया पे फीड करती है? तो द करेक्ट आंसर इज कैटलास. क्वेश्चन नंबर 15. Which combination is suitable for the composite fish culture? तो इनमें से composite fish culture में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक पॉन्ड है और क्या करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स की फिशेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, मल्टीपल फिशेस को एक साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, डिफरेंट वेराइटीज़ की, डिफरेंट स्पीशीज़ की. तो ऐसे उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि भाई एक जो फिश है वो सरफेस पे फीड करे, एक फ़िश मिडल जोन पे फीड करे, एक बॉटम पे, ताकि जो पॉन्ड है उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो सके. सो द करेक्ट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 16 इज विच अमंग द फॉलोइंग कंटेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ओनली? देखें, फर्स्ट कैल्शियम, सल्फर, जिंक. नो, इट इज़ नॉट, इट डज नॉट कंटेन ऑल द मैक्रो न्यूट्रिएंट. जिंक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है. सेकेंड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर. नो, कॉपर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है. सी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. दिस इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज ये तीनों ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. हम डी भी देख लेते हैं. नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयरन. ये भी ट्रू ऑप्शन नहीं है बिकॉज क्लोरीन, आयरन माइक्रो न्यूट्रिएंट है. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ हनी बी इज इटालियन? तो इनमें से कौन सी स्पीशीज इटालियन स्पीशीज है? एपिस डोर्साटा, एपिस फ्लोरे, एपिस सिराना इंडिका और एपिस मेलिफेरा. So the correct answer is Apis mellifera is the Italian species. Question number 18. Which of the following nutrient is not available in fertilizer? A. Nitrogen, B. Iron, C. Phosphorus, D. Potassium. So the correct answer is iron. तो जो मेजर फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो कमर्शियल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो एक्सेसिवली यूज़ किए जाते हैं फील्ड्स में, उनमें मेन जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम. आयरन उनमें प्रेजेंट नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 19. लास्ट क्वेश्चन. प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स अडॉप्टेड फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. तो ग्रेन स्टोर करने के लिए कौन से प्रिवेंटिव या कंट्रोल मेजर्स हमें लेने चाहिए? ए. स्ट्रिक्ट क्लीनिंग, बी. प्रॉपर डिसजॉइनिंग, सी. फ्यूमिगेशन और डी. ऑल ऑफ द अबव. So the correct answer is all of the above. Strict cleaning should be there उन एरियाज़ में जहाँ पे आप ग्रेन्स को स्टोर करने वाले हो, जिस जगह पे स्टोर करने वाले हो. प्रॉपर डिसजॉइनिंग का मतलब होता है कि आपने जो ग्रेन्स आप प्रॉपरली बैग्स में फिल करें
और उन बैग्स को एक प्रॉपर रो वाइज आपने अरेंज किया ताकि प्रॉपर एरेशन उनको मिलता रहे, ह्यूमिडिटी मेंटेन हो, ह्यूमिडिटी कम कम हो, देयर शुड बी लेस मॉइस्चर, तो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एरेशन, इन सब का बैलेंस बना रहे। फ्यूमिगेशन जो ये हो गए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, बायो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, उनको स्प्रे की फॉर्म में उन्हें फ्यूमिगेशन करना उस एरिया में जहाँ पे आपने ग्रेन्स को स्टोर किया है। So the correct answer is D, all of the above. So I hope you like this video. If you have any doubt related to this chapter or these questions, then you can ask me in the comment section below. Thank you for watching.